নতুন দিল্লীত স্বাক্ষৰিত হ'ব ৰাজ্যৰ আদিবাসী বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তি। ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে বিদ্ৰোহী সংগঠন কেইটাৰ নেতৃত্ব। বিৰছা কমাণ্ডো ফ'ৰ্চ, আদিবাসী কোব্ৰা মিলিটেন্স অফ আছাম, অল আদিবাসী নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি। আমি পোনপটে সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাম দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ পৰা। আমি আকৌ এবাৰ কৈছো, সান্তাল টাইগাৰ ফ'ৰ্চ, আদিবাসী পিপলছ আৰ্মিৰে হ'ব শান্তি চুক্তি। সমান্তৰালভাৱে আছে ইয়াত অল আদিবাসী নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন आर्मी, मिलिटेंट्स ऑफ असम, आदिवासी कोब्रा। सारे नौजवानों को मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग ने आर्म्स भी दिया सरकार को। करीबन 1182 जो नौजवान हथियार लेके घूम रहा था, सारे अभी मेन स्ट्रीम में आ जाएगा और ये हमारा एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। मैं इतना ही आप लोग को वादा करना चाहता हूं कि जो भी अकॉर्ड में लिखा होगा, अकॉर्ड में जो भी है, वो असम सरकार, भारत सरकार की मार्गदर्शन में हम लोग उनको बहुत ही सिंसियरली इम्प्लीमेंट करेगा। जहां तक असम का शांति का बात हुआ, माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद में अभी तक बोरो इलाका में अकॉर्ड हुआ, कार्बी आंगलंग में इलाका में अकॉर्ड हुआ, आज आदिवासी ग्रुप का साथ भी हमारा अकॉर्ड हो जाएगा। खाली अगर अभी हम दिमासा लोगों का साथ ही हमारा फाइनल अकॉर्ड बाकी है, वो हो जाएगा तो असम में कोई भी समस्या नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में ये हमारा स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। मैं प्रधानमंत्री जी को असम वासियों का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन में ये सारा काम हुआ है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं सारे असम वासियों का ओर में। आदिवासी जनगोष्ठी तो आदिवासी है, लेकिन साथ साथ वो लोग असमिया भी है। तो ये हम आज का अकॉर्ड का तहत एक असमिया जो एक हमारा जो जाति गठन का प्रक्रिया है, ये बहुत आगे बढ़ जाएगा और मैं तमाम आदिवासी युवकों को पुनः हमारा मेन स्ट्रीम में स्वागत करता हूं और आज का हिस्टोरिक डे असम का इतिहास में सोनाली अक्षर में लिखा जाएगा। यही बोलते हुए मेरा वाणी का मैं विराम देता हूं। अब मैं एनी रीजन को कहूंगा कि औपचारिक सिग्नेचर कर लिया जाए। আদিবাসী বিদ্ৰোহীৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এয়া শান্তি চুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান চলি আছে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত, য'ত উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বহুকেইজন শীৰ্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া। স্বাক্ষৰিত হৈ আছে বৰ্তমান, এই স্বাক্ষৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। উল্লেখযোগ্য যে সুকীয়া ৰাজ্যকে ধৰি কেইবাদফীয়া দাবীৰ সমৰ্থনত বহু বছৰ ধৰি সশস্ত্ৰ আন্দোলন চলাই আছিল 8টাকৈ আদিবাসী সংগঠনে। জানিব পৰা মতে চুক্তিৰ জৰিয়তে আদিবাসী কল্যাণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই পৰিষদলৈ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যোগান ধৰিব পুঁজি। আদিবাসীসকলৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল নতুন দিল্লীত আৰু অৱশেষত এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে। কোনো ধৰণৰ হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ, কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত নকৰাকৈ শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে সকলোকৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ এটা অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱা হৈছে এই শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে। দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। নতুন দিল্লীত এয়া স্বাক্ষৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ আদিবাসী বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তি। দিল্লীত উপস্থিত হৈছে বিদ্ৰোহী সংগঠনকেইটাৰ এয়া নেতৃত্ব। বৰ্তমান স্বাক্ষৰৰ এই প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। বিৰছা কমাণ্ডো ফ'ৰ্চ, আদিবাসী কোব্ৰা মিলিটেন্স অফ আছাম, অল আদিবাসী নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি, সান্তাল টাইগাৰ ফ'ৰ্চ, আদিবাসী পিপলছ আৰ্মিৰে এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে। চুক্তি স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি কেইবাজনো শীৰ্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া।
ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে সুকীয়া ৰাজ্যকে ধৰি কেইবাদফীয়া দাবীৰ সমৰ্থনত এই বহু বছৰ ধৰি সশস্ত্ৰ আন্দোলন চলাই আহিছিল এই 5টাকৈ আদিবাসী সংগঠনে, যিকেইটা বৰ্তমান তাত উপস্থিত আছে, যিকেইটাই বৰ্তমান শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে। এই সংগঠনৰ নেতৃত্ব বৰ্তমান তাত উপস্থিত আছে। জানিব পৰা মতে চুক্তিৰ জৰিয়তে আদিবাসী কল্যাণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই পৰিষদলৈ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে পুঁজি যোগান ধৰিব। আদিবাসীসকলৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এক বৃহৎ কাৰ্যসূচী আৰু ই এক সফলতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে অসম চৰকাৰৰ বাবে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাবে। কাৰণ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল বিদ্ৰোহী সংগঠনকেইটাৰ আৰু তেওঁলোকে সশস্ত্ৰ পন্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানকো তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, লগতে সাংসদ আৰু আন আন বিষয়ববীয়াসকলকো দেখা গৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সমান্তৰালকৈ। ইতিমধ্যে আমি আদিবাসী বিদ্ৰোহী সংগঠনকেইটাৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁ: বিৰছা কমাণ্ডো ফ'ৰ্চ, আদিবাসী কোব্ৰা মিলিটেন্স অফ আছাম, অল আদিবাসী নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি, সান্তাল টাইগাৰ ফ'ৰ্চ, আদিবাসী পিপলছ আৰ্মি। তেওঁলোক এই শান্তি চুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বৰ্তমান স্বাক্ষৰিত হৈ আছে এই শান্তি চুক্তি। চুক্তি স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানত এয়া বৰ্তমান বহুকেইগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক দেখা গৈছে। অসমৰ সাংসদ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আৰু উচ্চপদস্থ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলক দেখা গৈছে তাত। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय गृह मंत्री महोदय को रिक्वेस्ट करूंगा आपके संबोधन के लिए। असम और पूरे उत्तर पूर्व के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व को शांत और विकसित बनाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लिए गए। इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम उत्तर पूर्व में शांति प्रस्तापित करना है। इसमें आज एक बड़ा मील का पत्थर हम पार कर आगे बढ़ रहे हैं। असम के आदिवासी समूह के लगभग 1100 के आसपास जवान हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री असम श्री रामेश्वर तेली जी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के राज्य मंत्री श्री संजय किशन जी, मंत्री असम सरकार, पल्लव लोचन दास जी, लोकसभा के सांसद, श्री कामाख्या क्यासा, राज्यसभा के सांसद, अन्य उपस्थित सांसदगण, पूर्व सांसदगण, श्री अजय कुमार भल्ला जी, मुख्य सचिव असम सरकार, डीआईबी तपन कुमार डेका जी, श्री पीयूष गोयल जी, डीजीपी असम सरकार श्री भास्कर ज्योति जी, एके मिश्रा जिनके जिनमें नॉर्थ ईस्ट के सभी हथियारी ग्रुपों के साथ बातचीत करने का काम गृह मंत्रालय ने दिया है। और आज सबसे बड़ी स्वागत में मेरे सभी आदिवासी समूहों के भाइयों का हृदय से गृह मंत्रालय में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जो ये कार्यक्रम है वो कार्यक्रम एक लंबे समय से
2014 से जो हमने प्रक्रिया प्रारंभ की है, नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने की, वो प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव है। गृह मंत्रालय ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने के लिए उत्तर पूर्व की अद्भुत संस्कृति का संवर्धन और विकास करने का फैसला लिया है। इसके साथ साथ सारे विवादों का समापन कर एक चिरकालिक हमेशा के लिए शांति उत्तर पूर्व में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, असम में हो, इसका भी रास्ता गृह मंत्रालय प्रशस्त करने का प्रयास कर रहा है। इसमें 2 प्रकार की बाधाएं थी। कुछ संवादहीनता के कारण, अलग अलग हितों के टकराव से अनेक ट्राइब्स के ग्रुपों ने अपने अपने हाथ में हथियार उठा लिए और इसके कारण ग्रुप के बीच में, ग्रुप और राज्यों की पुलिस के बीच में, ग्रुप और केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों के बीच में कई मुठभेड़ें हुई, हजारों लोग मारे गए, दोनों ओर से मारे गए, जनता भी मारी गई, पुलिस कर्मचारी भी मारे गए, सशस्त्र बलों के जवान भी मारे गए और हथियारी ग्रुपों के युवा भी मारे गए। हमने तय किया है कि 2024 के पहले राज्यों के बीच में सीमा का विवाद हो, चाहे ये सारे सशस्त्र ग्रुपों की बात हो, हम हर विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। तो एक और असम की और उत्तर पूर्व की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना, सारे विवादों को समाप्त कर सारे सशस्त्र गुटों के साथ समझौता कर पुनर्वसन करना और तीसरा विकास की गति देकर उत्तर पूर्व को देश के बाकी के हिस्सों के अनुरूप विकसित बनाना। ये 3 मोर्चों पर हमने काम चालू किया और विगत 3 साल में ढेर सारे समझौते भारत सरकार, असम सरकार, अन्य सरकारों ने आपस में भी मिलकर किए हैं। भारत सरकार, असम सरकार और सशस्त्र गुटों के बीच में भी हुआ। 2019 में NLFT के साथ समझौता हुआ जिसमें त्रिपुरा का हथियारी ग्रुप था, इन लोगों ने भी आत्मसमर्पण किया। 2020 में 23 साल पुराने ब्रू रियांग शरणार्थी संकट को भी मिजोरम सरकार और त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर रिजॉल्व किया गया। असम में 5 साल पुराना बोडो समस्या जिसमें कम से कम 4000 लोग अब तक मारे गए थे, उसको 2020 27 जनवरी को हमने समाप्त कर दिया। लगभग 1600 कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। असम के कार्बिक क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विवाद को भी 2021 में समाप्त किया। लगभग 1000 से ज्यादा कैडर ने आत्मसमर्पण किया। असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता कर लगभग 2022 में 65% सीमा के विवाद को निपटारा किया और आज इसका अगला पड़ाव है। मेरे सभी साथी आज मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से, मोदी जी की ओर से और मेरे स्वयं की ओर से आप सभी का बहुत बहुत मन से मैं स्वागत करना चाहता हूं और आपके पुनर्वसन के लिए जो कुछ भी इस एग्रीमेंट में किया है ये सुनिश्चित करेगी भारत सरकार और असम के मुख्यमंत्री और असम सरकार मिलकर ये पूरा पालन करेगा। नरेंद्र मोदी सरकार का एक रिकॉर्ड है, जितने भी समझौते हमने साइन किए हैं वो समझौते के अब तक 93% काम समाप्त हो चुके हैं। तो आप लोगों को भी मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपने जो अकॉर्ड साइन किया है उसको लेटर और स्पिरिट में हम नीचे तक पहुंचाएंगे और इसका एक अच्छा परिणाम है। असम में और नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफी शांति बहाल हुई और इसके कारण असम के 60% क्षेत्र से हमने अपसपा को हटाने में सफलता प्राप्त की। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 2 पुलिस स्टेशन में अपसपा बचा है। नागालैंड के 7 जिलों के सिर्फ 15 पुलिस स्टेशन में बचा है और त्रिपुरा और मेघालय अपसपा से संपूर्णपणे मुक्त कर दिए गए हैं। मित्रों, आज हमने आपके साथ समझौते में राजनीतिक, आर्थिक
और शैक्षिक आकांक्षाएं जो आदिवासी समाज के लोगों की है, इसको पूरा करने का जिम्मा भारत सरकार और असम सरकार ने लिया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषीय और जातीय पहचान न केवल सुरक्षित हो और मजबूत बने, इसके लिए भी भारत सरकार ने आपके साथ, असम सरकार ने आपके साथ एग्रीमेंट किया है। और चाय बागान और सारे गांवों के अंदर तुरंत ही त्वरित गति से केंद्रित विकास हो, इसके लिए भी वो दोनों सरकारें मिलकर हम प्रयास करेंगे। एक जनजातीय कल्याण और विकास परिषद की स्थापना भी असम सरकार करेगी और भारत सरकार चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए भी अनेक उपाय हाथ में लेगी। लगभग 1000 करोड़ रुपए का 5 साल का पैकेज एक क्षेत्र के विकास के लिए हमने जो तय किया है, 5 साल में उसको सुनिश्चित रूप से पूरा कर दिया जाएगा। मित्रों, इस अवसर पर मैं आप लोगों को कुछ आंकड़े जरूर बताना चाहता हूं कि घटनाएं जो पहले आतंकवाद से संबंधित घटनाएं जो नॉर्थ ईस्ट में 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी, तब 824 আৰু আমি দিল্লীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালোঁ। ইতিমধ্যে আদিবাসী সংগঠনৰ সৈতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে। যিবোৰ আদিবাসী বিদ্ৰোহী সংগঠনে সশস্ত্ৰ পন্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছিল, তেওঁলোকে এতিয়া মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিছে। শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সকলো দিশৰ উন্নতি হ'ব বুলি বিশ্বাস বা আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ ভাষণো ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনিলে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত।